everyone. Today we are going to study nutrition in human beings. The digestion of food in human beings takes place in the human digestive system. This digestive system is known as alimentary canal. Alimentary canal starts from the mouth and ends in the anus. It is 9 meters long. The organs used are mouth, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. Here organs should not come, there is a mistake. The glands associated are salivary gland, liver and pancreas. Now what are the steps of nutrition? First step will be as usual ingestion. So we take the food from a external environment with the help of our hands and we take it into the internal environment. After that, second step is digestion. This digestion of food begins in the mouth. There are two types of digestion. Number one is physical digestion. Number two is chemical digestion. In the mouth, we have got a set of teeth. Those are 32 teeth. We know that in humans, we get two sets of teeth. First, during our childhood, those are known as milk teeth, and another one, permanent teeth. So, this teeth grinds the food and convert them into the smaller pieces. So after grinding of the food, what happens? The shape and size of the food changes. This is known as physical digestion. Only the physical appearance of the food changes, nothing else. After that, the tongue rotates the food and mix the food with the saliva. What is saliva? Saliva is the secretion of salivary gland. We have got, please roll up your tongue and put it on the upside of your mouth. You will feel that there are something present. That is where our salivary gland is present. So the salivary gland secretes the saliva. This saliva contains an special enzyme known as salivary amylase. What is the function of the salivary amylase? Salivary amylase, the saliva contains the enzyme known as salivary amylase. The saliva contains the enzyme salivary amylase. This salivary amylase helps in the conversion of starch into sugar. So please note down, in our mouth, the two types of digestion takes place: physical digestion and chemical digestion. In physical digestion, it is done by our teeth. Only the shape and size of the food changes. In the chemical digestion, the salivary amylase act on the starch and convert it into the sugar. The salivary amylase is present in saliva. Saliva is released by salivary gland. After that, what happens here? As we know that food remains only for the short time in our mouth, so the digestion remains incomplete. So this partially digested food or incompletely digested food enters into the pipe-like structure known as esophagus. Esophagus is also known as food pipe. It is made up of smooth muscle and the food moves in the esophagus by the rhythmic contraction and relaxation of the walls of the esophagus. मीन्स जो इसोफेगस की वॉल होती है वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करती है फिर रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है फिर रिलैक्स करती है. तो जैसे ही वो कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती रहती है तो फूड धीरे धीरे इसोफेगस से नीचे मूव करता जाता है और इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज द मूवमेंट which occurs in the esophagus, helps in bringing down of food by the rhythmic contraction of and relaxation of smooth muscles present in the walls of esophagus. Next is stomach. After from esophagus, like from mouth through the esophagus, the food reaches to the stomach. Stomach is a J-shaped organ. Okay. And it is present on our left side of abdomen. Our body is divided into three cavities: head, thorax and abdomen cavity. So the stomach is present in the abdomen cavity. Here the food remains for 3 to 4 hours.
Okay, as soon as the food enters the stomach, the size of stomach swells up and the food gets converted into a semi solid form known as chyme. ऊपर माउथ से जो फूड आ रहा था, इसोफेगस में जो फूड रहता है वो बोलस कहलाता है, बॉल के फॉर्म में रहता है, और स्टमक में जो फूड पेस्ट के जैसे बन जाता है उसको बोलते हैं काइम, CHYME। स्टमक के जो वॉल्स होते हैं उनमें 3 ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स होती हैं वो गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करती हैं। 3 तरह के गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दूसरा पेप्सिन और तीसरा म्यूकस। इन सब के फंक्शंस लिखने आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सिक्रीशंस फ्रॉम द ग्लैंड्स ऑफ स्टमक एंड व्हाट आर देयर फंक्शन। तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन होता है फूड को एसिडिक बनाना, क्योंकि हमको पता है हमारा सलाइवा जो है वो बेसिक इन नेचर है। उसके बाद सेकेंड फंक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सिंस वो एसिडिक है तो जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं फूड में वो उसको आपको किल कर देता है, टू किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। और तीसरा काम होता है टू एक्टिवेट द पेप्सिन, ठीक है, जो पेप्सिन सिक्रीट होता है उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। सेकेंड, म्यूकस सिक्रीट होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? फंक्शन ऑफ म्यूकस इज टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक, क्योंकि हमारे स्टमक की लाइनिंग बहुत सॉफ्ट होती है, फ्रॉम द HCl। कभी कभी हमारे मतलब हमको फील होता है कि इनडाइजेशन हो रहा है या फिर पेट में जलन हो रही है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि एसिड का सिक्रीशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद पेप्सिन सिक्रीट होता है। पेप्सिन का काम होता है टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। लिसन चिल्ड्रन, इफ द दिस म्यूकस विल नॉट बी सिक्रीटेड, ठीक है, तो हमारे जो स्टमक की लाइनिंग होगी वो बर्न हो जाएगी। फिर ये जो फूड है वो एसिडिक इन नेचर हो जाता है स्टमक में। उसके बाद धीरे धीरे वो कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड का एंट्री स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में कंट्रोल करता है मसल स्पिंचर। एक मसल स्पिंचर मतलब जैसे आपके घर में गेट वॉल होती है ना, जो पानी को कंट्रोल करती है, पानी के मूवमेंट को, वैसे ही मसल स्पिंचर कंट्रोल करता है फूड के मूवमेंट को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन नाम स्मॉल है पर छोटा नहीं समझने का इसको। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बेसिकली पूरे इंटेस्टाइन का एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट है। वो 6.5 मीटर लॉन्ग होता है, मतलब अपनी एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर लॉन्ग है और इंटेस्टाइन 6.5 मीटर। इसका नाम इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन है क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट है ना कुछ इस तरह से हुआ है, ऐसे कॉइलिंग के फॉर्म में इसका अरेंजमेंट हुआ है। ये इसलिए कॉइलिंग के फॉर्म में हुआ है ताकि थोड़े से जगह में ये आराम से पूरा का पूरा फिक्स हो जाए, ठीक है, अरेंज हो जाए। अब जो इंटेस्टाइन होती है वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है। मतलब अगर एनिमल कार्निवोरस है तो इंटेस्टाइन स्मॉल होगी क्योंकि मीट इजीली डाइजेस्टेबल होता है। अगर आप एनिमल जो है हर्बीवोरस है तो इंटेस्टाइन जो होगी वो लॉन्गर होगी क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपेरिजन टू मीट। इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन का साइट है। क्वेश्चन आता है विच इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, सो इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे 2 ग्लैंड्स का सिक्रीशन आता है, लिवर और पैनक्रियाज। लिवर इज नोन एज आवर लार्जेस्ट ग्लैंड। लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कि एक ग्रीनिश येलो लिक्विड है और वो कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और ये अपना जो लिवर जूस सिक्रीट करता है बाइल जूस, इसका नेचर होता है एल्कलाइन। स्टमक से जो फूड आ रहा था वो बेसिक था, यहाँ पे जो फूड है वो है एल्कलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे फूड को एल्कलाइन बना दिया जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बाइल। और दूसरा काम होता है बाइल जूस का टू हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब जो फैट होता है, फैट के मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है विलाय। विलाय क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कराती हैं। विलाय छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया को इंक्रीज कराती हैं ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए। कुछ इस तरह से होती हैं विलायें।
और ये रिचली सप्लाइड होती हैं ब्लड वेसल्स से। उसके बाद दूसरा ग्लैंड जिसका सिक्रीशन ये रिसीव करते हैं वो है पेनक्रियास। पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। सॉरी, वो पेज मिसिंग था। तो जो पेनक्रियास होता है वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, ठीक है। और ये जो पेनक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है, इसमें पेनक्रियाटिक एमाइलेज प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है और लाइपेज प्रेजेंट होता है। एमाइलेज, जैसे कि हमें पता है कि सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या था, स्टार्च को शुगर में बदलना। सेम चीज पेनक्रियाटिक एमाइलेज का काम होगा स्टार्च को शुगर में बदलना। ट्रिप्सिन का काम होगा प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, जैसे पेप्सिन ट्रिप्सिन सेम नाम है, दोनों प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं। और लाइपेज का काम होगा वो फ्लैट के ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफाई करना और उसको डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट से बनेगा ग्लूकोज, प्रोटीन से बनाएगा अमीनो एसिड्स और फैट्स को ब्रेक करेगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा ग्लूकोज में, फैट्स को ब्रेक करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को ब्रेक करेगा अमीनो एसिड में। और ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं। एक चीज आप नोट करें यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। दूसरा जो भी सिक्रीशंस होते हैं इंटेस्टाइन में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तीसरा आता है व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। तो आपको ये लिखना है कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज, प्रोटीन इंटू अमाइनो एसिड, फैट्स इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये जितना भी केमिकल डाइजेशन होता है वो एंजाइम्स की मदद से होता है। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं बायोकैटलिस्ट, मतलब हमारी लिविंग बींग्स में जो रिएक्शंस करा रहे हैं जो भी, उन सबको एंजाइम्स बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। तो हमारा सारा का सारा फूड कहाँ ब्रेक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में होता है विलाय। विलाय का काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। तो जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, फिर जो हमारा विलाय होता है वो पूरा रिचली सप्लाइड होता है ब्लड वेसल्स से। बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो विलाय के सेल्स धीरे धीरे फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में पहुंचाते हैं, और ये धीरे धीरे जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में जाके फूड को पहुंचा देता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन। ये जो एसिमिलेशन में क्या होता है, जो एब्जॉर्ब फूड है हमारा, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हुआ, वो हर एक सेल तक पहुंचता है। और सेल क्या करते हैं, उस फूड से एनर्जी लेते हैं फूड को बर्न करके, और उसको ग्रोथ और रिपेयर में यूज करते हैं। जितना फूड यूज हुआ तो हुआ, जो फूड यूज नहीं होता है वो हमारे एनिमल्स में स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, प्लांट में स्टोर हो रहा था स्टार्च के फॉर्म में। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो इजेशन की प्रोसेस में लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकलता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में दो चीज़ें होती हैं, कोई भी डाइजेशन नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। और ये कौन कंट्रोल करता है एग्जिट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, एनाल स्प्लिंचर, क्योंकि एनस के थ्रू बाहर निकलता है। अब आपके एनसीईआरटी बुक में एक येलो बॉक्स में दिया होगा डेंटल कैरीज करके, तो मैं उसको पढ़ा देती हूँ। हमारा जो टीथ है, बेसिकली सेट्स ऑफ टूथ को हम टीथ बोलते हैं और सिंगल को हम टूथ बोलते हैं। तो उसमें फर्स्ट लेयर होती है एनिमल, हार्डेस्ट लेयर होती है पूरे बॉडी की। सेकेंड लेयर होती है डेंटाइन, डेंटाइन बोन से सिमिलर होती है। और थर्ड लेयर होती है पल्प। ये जो हमारी पल्प होती है, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स जो होते हैं पूरे सिग्नल को आराम से कैरी करने में हेल्प करते हैं। अब क्या होता है, डेंटल कैरीज क्या होता है, एक छोटा सा कैविटी बनना अपने दांत में। क्यों बनता है, क्योंकि कुछ एसिड प्रेजेंट है, कुछ फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है उस फूड पार्टिकल्स में एक्ट करने के लिए। तो जिस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे हम प्रॉपरली टीथ में केयर नहीं कर पाते, तो वहाँ पे फूड रह जाता है। फूड के रहने से बैक्टीरिया हो जाते हैं, और बैक्टीरिया धीरे धीरे उस फूड को खाते हैं और वहाँ पे फूड टीथ में छोटा सा होल कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया आया, खाने में बैठा, उसको डाइजेस्ट करा तो एसिड प्रोड्यूस होगा। अब एसिड धीरे धीरे जो कैल्शियम की लेयर है डेंटाइन वाली उसको डिसॉल्व करेगा, फिर धीरे धीरे सेकेंड लेयर को डिसॉल्व करेगा एनिमल को,
सॉरी फर्स्ट लेयर एनेमल, सेकेंड लेयर डेंटाइन और थर्ड लेयर पल्प को। जैसे ही वो पल्प में पहुंचेगा वहाँ पे नर्व्स होंगी और ब्लड वेसल्स होंगी। तो जो हमारी नर्व्स होंगी ना, वो उनमें झंझनाहट महसूस होगी, जिसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, नर्व एंडिंग में दर्द होगा, जिससे हमें दांतों में दर्द होने लगेगा। ठीक है, और किसी किसी केस में इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो जाता है। डेंटल प्लेग क्या होता है, एक येलो कलर की कोटिंग जम जाती है हमारे दांत में। और ये येलो कलर की कोटिंग क्या होता है कि पूरा जो जैसे कि हमको पता है हमारा सलाइवा एल्कलाइन है, जो बैक्टीरिया का फंक्शन है वो उससे एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, एक येलोइश कोटिंग बन जाती है, तो जो हमारा एल्कलाइन सलाइवा है वो बैक्टीरिया तक के एसिड तक नहीं पहुंच पाता, उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पूरा दांत खराब हो जाता है। सो वी विल एंड विद दिस एंड we will move to the next part of the chapter, that is respiration, in the upcoming videos. Keep watching, please subscribe to the channel and do comment to improve my videos. Your comments are more welcome for the improvement. आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे पढ़ाऊंगी, कोई इशू नहीं है।